Hello students, this is Nikita Singhai. Please do like and subscribe my channel so that you can get all the further updates. So now let's start with civics chapter 1. What is democracy? Why democracy? Here it is written democracy of the people, by the people and to the people. And here and above we can see Mahatma Gandhi had quoted, the spirit of democracy cannot be established in the mindset of terrorism, whether government or popular. So now let's have a look. What is democracy? People, power, democracy. Or we can say democracy is a form of government where people has the power to choose his or her representatives. डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जिसे जनता चुनती है। यह डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां रूलर जो चाहते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और वो लोगों के हित में कार्य करते हैं। Here, every people have a right to vote above age 18. We can see that the representatives will form the government and make policy on the behalf of the people according to the powers and functions given to the government by the constitution. Constitution क्या है? संविधान। संविधान जो हमारा written form में है। It is a set of rules which have been written for the execution of the country. We can also state that what is democracy? It is the people have the power to remove the representative if they are not functioning his or her duty properly. Now we have to learn this. What is democracy? The word democracy has been derived from the Greek word demokratika. Demos means people, kratia means rule. What is democracy? As according to Abraham Lincoln, one of the greatest president of USA, defined democracy as the government of the people, by the people, for the people. So here is the basic difference between democratic and non-democratic government. This you have to learn because every time it comes for 3 marks or either for 5 marks and it is coming from all the years simultaneously that I am watching. So इसको भी हम एक तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ के चुने हुए ही लोग गवर्नमेंट के भागीदार हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक क्या है? रूल बाय फोर्स, बाय पर्सन और अ ग्रुप, फोर्स करके वर्क इंप्लीमेंट करवाना। नाउ सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री और फेयर इलेक्शन। जो भी पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन के प्रोसीजर में और जब उसको जनता जिता देती है वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और फ्री और फेयर इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं हमारे यहाँ एवरी 5 ईयर, तो जब ये व्यक्ति चुना जाता है वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन या हम कह सकते हैं जिस भी दल में है, सपोज कांग्रेस, बीजेपी, तो वो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर होता है। और जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करता है और इसलिए वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। We can see non-democratic government representatives are not elected by the people. यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन आके उस पार्टी में नहीं जाता बल्कि पार्टी सिलेक्ट करती है कि कौन नेतृत्व करेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, उनकी पार्टी को आगे लेके जाएगा। मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स आर द taking the major decisions to carry out the part of government
And non-democratic government में we can say major decisions by non-elected leaders. Now, next point, citizens have the right to oppose policy and action made by the government. यहाँ पर सिटीजन्स के पास राइट होती है अपोज करने के लिए अगर गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेती है तो। यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूल टॉलरेटेड। नॉन डेमोक्रेटिक में लोगों के पास अधिकार नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके या उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। Here in democratic government, citizens have voting right, one person, one vote, one value. This is very important. हर किसी के पास वोट का अधिकार है, हर वोट काउंटेबल है और हर पर्सन का नेतृत्व अधिकार है कि वो 18 एज के अबाव वोट कर सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक में नो वोटिंग राइट इज गिवन टू द सिटीजन। यहाँ पर कोई वोटिंग राइट नहीं दी जाती है नागरिक को। तो जैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर ली तो वो ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो ही इलेक्शन में लीडर बन जाएंगे और सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं रहेगी, एज हैपेंड इन चाइना। तो हम कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाइना में रोल प्ले करती है। कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ चाइना की, तो वही लीड इलेक्शन करती है, वही लीडर्स रिप्रेजेंट करती है और वही चुन लेती है और लोगों को कोई राइट्स नहीं है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे हम कह सकते हैं इंडिया, यहाँ पर पार्टी लोग बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, मेजर डिसीजन लिया जाता है लीडर्स की तौर पे और हर पर्सन को राइट होता है, एवरी वोट इज काउंटेबल, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। थैंक यू।